من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو میری طرف سے خیر مقدم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان موجود اس وقت ہماری صوبے کے سربراہ جناب جیری صاحب ہے، اور میں سب سے پہلے ان کا ازحد شکریہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر تشریف لائے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں گے اس وقت کے واقعات سے اور متانت اور سنجیدگی کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا ہمارے لیے بھی پہلے سنجیدہ تھا، لیکن پھر بھی ہم بہت شکر گزار ہیں صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست پہ یہاں آمد کی اور ہم سب کا مان رکھا، اور خاص کر جو اس وقت ہمارے لیے مہمان زیبکار ہے وہ عبدالحمید پال صاحب ہے، جو اب انشاءاللہ کچھ دنوں یہی ایک دو دن کے بعد اس اپنی ملازمت سے سبق دوش ہو رہے ہیں۔ کیونکہ پال صاحب کے بارے میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ راہوں کے رہبر ہے یہ، سفر کے ہم سفر ہے یہ، ہر موڑ ہر گلی پہچانے سے نظر ہے یہ۔ اور اس ضمن میں ان کی ریٹائرمنٹ کی اس تقریب پر ہم مختلف آراء سے اور مختلف جو ساتھی ہے ان کی ان بارے میں جو بھی کچھ وہ اظہار خیال کرنا چاہیں گے ان کو یہاں پہ مدعو کریں گے، لیکن اس تقریب کی ابتدا کلام پاک سے بہترین کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں مدعو کرنا چاہتا ہوں حافظ ظہور احمد خان صاحب کا، وہ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ وقار ہے وہ ہے نام پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام، اور اس کے لیے میں مشتاق احمد بٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہ کرتا ہے برونٹ کنہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سند ناو اک نعت مقدس پیش۔ میں پور امید انشاءاللہ الرحمن تھی تھو ات کن دھیان، اگر اس کن جائے غلطی گھس تر کر اللہ تعالیٰ تہ معاف تو تھی کرو تر درگزر۔ وضحیٰ روئے جبینس بو لگئی، میانہ نبی حسن کس
Durey yetimus bola gayi Nuri pake aulinas bola gayi Jisme pake naz ninas bola gayi Benim Nebi rahmatuk Khalat Khudayan Sayyidi Rahmatan lil alamin bol gayi Yani Nebi çi hakan izni şifayet Dütümütü Sen şefi'ul muzinebines Bola gayi Yani Nebiye yar Joyni asli dinek Taibiyadar Yari pavcey Acımayines Bola gayi Vazuha roye cebines Bola gayi Husn-ı kis durey yatimas Bola gayi Ve sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi को आगे बढ़ाते हुए हम जनाब मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर गामाइनर के 01 शबीर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और मेहमान गिरामी का खुशामदीद करें। Respected Joint Director Forest Protection Force Kashmir, Janab Mehraj Saab, my dear colleague DD نتموسا جاوید صاحب آج کی اس محفل کے روحی رواں جو آج ہم سے یہاں پہ رخصت ہو رہے ہیں سپر اینیویشن پہ جناب عبدالحمید پال صاحب ان کے فرزند اعجاز صاحب اور ان کے اور ساتھی ساتھ میں ہیں ان کے رشتے دار خاص شوکت صاحب یہاں پہ آئے ایف پی ایف کے تمام فیملی ممبرز جو ہماری میری فیملی کے ممبرز ہیں ان میں اے ڈی صاحبان ڈی آئی صاحبان اور دوسرا عملہ میرے آفس کا عملہ میں تمام کا یہاں پہ پہلے خلوص دل سے دل کی عمیق گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب کا یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس انویٹیشن کا لاج رکھ کے عجیم الفرصت ہونے کے باوجود اور اپنی ان کی کچھ مصروفیات کے باوجود انہوں نے یہاں پہ ہماری یہ دعوت قبول کر کے اس محفل کو عزت بخشی اور یہاں پہ فارسٹ پروٹیکشن فورس کا جو عملہ ہے جانے والے ہمارے ساتھی کا بھی اور جو ہمارا یہاں پہ عملہ بھی ہے ورکنگ عملہ جو ہے ان کو ابھی آپ نے یہاں پہ آ کے سر مورل بوسٹ کیا ہوا ہے میرے ساتھ اس جانے والے ہمارے اس فیملی ممبر جو ہمارا تھا آج تک ابھی بھی رہے گا آج کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس نے صرف میرے ساتھ 3 مہینے گزارے ڈرائیور اور افسر کا ایک الگ ہی ریلیشن ہوتا ہے لیکن فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کسی آدمی کو جاننے کے لیے اب سالوں نہیں چاہیے میں بولوں گا کہ اب اس نے میرے ساتھ 4 سال نہیں دیے 5 سال نہیں گزارے جو اس نے میرے ساتھ یہ قلیل عرصہ دیا مجھے پہلے دن سے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ میرے ساتھ کون انسان ابھی ڈرائیور گاڑی کون چلا رہا ہے میں نے ایک اس میں عبدالحمید پال صاحب میں نے ایک پرخلوص انسان پایا ڈیوٹی کا پابند چاہے میں اس کو سویرے مارننگ میں بلاؤں یہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی سپاٹ پہ پہنچتا تھا چاہے مجھے ٹنگ مرگ جانا ہوتا تھا یا سری نگر میں جانا ہوتا تھا یا افسر اس کے بارے میں بہت ہی اچھا میں نے سنا ہے آج تک
इसकी काबिलियत की, इसकी फरमाबरदारी की, सबॉर्डिनेशन ऑफिसर के साथ बहुत ही इसकी बेहतरीन रही है। आपके साथ इसका बहुत दीरीना ताल्लुक रहा है। आप आएंगे, इसके बारे में रिलेशन क्या रहा डीपली, उसके बाद थारोली उसकी आप तारीफ़ें करनी है, तारीफ़ों की काबिल है भी है। आपने जो यहाँ आके इसकी ये इज़्ज़त अफजाई की, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने एक फैमिली होने का मुजाहरा किया यहाँ पे, ये इस बाइस हुआ कि इसने कुछ ना कुछ अच्छा किया हुआ है यहाँ पे अपने इस टेन्योर में, तभी आप यहाँ पे असेंबल हो गए और इसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए यहाँ पे जमा हो गए। जो अब्दुल हमीद पाल साहब हमसे यहाँ रुखसत हो रहे हैं, लगता तो नहीं है, लगता है जैसे ये ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, कितने यंग हैं माशाल्लाह। आज ही करें, मेरी दुआ है लंबी उम्र हो उनकी, सेहत सलामती में रहे, अपने अहल वयाल के साथ खुशहाल रहें, हंसते हुए रहें और हमारे साथ ताल्लुक न काटें, हमारे साथ जुड़ते रहें, फ़ोन पे रहें, यहाँ भी आ सकते हैं हमारे पास, जब भी इनको मौका मिले यहाँ आ जाए। हमारे दिल इनके लिए, हमारे दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो प्राइम ऑफ लाइफ, इन्होंने 27 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, लेकिन ये 27 साल वो प्राइम ऑफ लाइफ है जो इंसान 30 से 60 तक इन्होंने दिए हैं। क्या करता हूँ यहाँ पे खुसूसन हमारे अपने एडी साहब, एडी एडमिनिस्ट्रेशन शुक्र साहब, जिन्होंने पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल इसी में लगे हुए हैं कि कैसे हम अरेंज करें इसका, और आप सब का भी जिन्होंने यहाँ पे आके इस महफिल को इज्जत बख्शी, शुक्रिया कि जो काबिल कदर हकदार है वो मेरे साथ मेरी टीम है, खासकर जो सारे और अफसर साहिबान और जो मदो हजरात यहाँ हाजिर है। जब भी हमने कभी इनसे दरख्वास्त की तो ये फ़ौरन से पेशतर सामने आए और अपनी माउनत का इजहार किया, और इस अच्छे काम के लिए खासकर यादगार बनाने के लिए जो हमसे सबकदोश होने वाले मुलाजिम हैं उनके लिए हर वक्त तन दन मन कदमे सखने दरहमे साथ साथ रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौसम की हर अदा में चलती रही गाड़ी, कभी बर्फ कभी बारिश, फिर भी न रुकी कार्रवाई। जज़ाकल्लाह। अब मैं चूंकि इस पॉल साहब के साथ इससे पहले हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब का डिप्टी डायरेक्टर जावेद अहमद साहब भी वाबस्ता रहे हैं, इनकी अच्छी यादें वाबस्ता रही है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी लब कुशाई करने के लिए Respected Joint Director of Forest Protection Force Kashmir Mehraj Saab, Deputy Director K01 Shabir Saab, AD Sahiban and other colleagues, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मेरी खुशी का मुकाम कितना है इस वक्त। इसकी दो वजह है। K01 के साथ मेरा दिली लगाव है, 4.5 साल मैंने यहाँ गुजारी है, वो सबसे ज़्यादा टेन्योर अपनी लाइफ का मैंने K01 में गुजारा है, तो उस वजह से मैं खुश हूँ कि एक बार फिर मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। दूसरा कि पॉल साहब की रिटायरमेंट हो रही है तो इसमें मैं शामिल हूँ, और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस फंक्शन में इनवाइट किया और मेरी इज्जत बख्शी मुझे भी, तो उसके लिए मैं वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे याद है अक्टूबर 2019 को पॉल साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था पहले, तो अब तो फरवरी 2024 4+ ईयर्स हैं। तो शबीर साहब ने जैसे अभी पॉल साहब के बारे में बताया कि 3 महीनों में कितना वो अट्रैक्ट हुए इस शख्स से, तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 4.5 साल में मेरी कितनी अट्रैक्शन इनके साथ हुई होगी। इस पॉल साहब के बारे में मैं अभी जेडी साहब को बता रहा था, अंदर अभी हम जस्ट बैठे थे, तो मैं इनको बता रहा था कि मुझे कभी नहीं लगा कि पॉल साहब ड्राइवर है, क्योंकि ड्राइवर का आम जो होता है ना, ये फॉर्मेट होता है ड्राइवर्स का, इनका जवाब ही ऐसा है, बड़े तेज होते हैं, मामूली बात पे
गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये ड्राइविंग जॉब ही ऐसा होता है। मुझे खुद भी, मैं बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, कभी रास्ते में कोई आता है तो इंसान को गुस्सा आता है, वो एक नॉर्मल रिएक्शन है, तो फिर इनमें वो एडाप्ट हो जाता है। तो लेकिन पॉल साहब में बिल्कुल वो चीज नहीं थी, बड़े कूल, काम, कम्पैक्ट, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज जॉब। सुबह 8:30 बजे मुझे इनका फोन आता था, हमारा क्या प्रोग्राम है, उसमें ना 1 मिनट ऊपर जाता था ना 1 मिनट नीचे जाता था। तो यहाँ पे भी जब भी कभी इनको बुलाया, कोई असाइनमेंट इनको दे दिया, तो इन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि पॉल साहब की जो भी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ होगी बड़ी पीसफुल होगी। लास्ट में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पॉल साहब के साथ उनके साहबजादे नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि आज ही इंट्रोडक्शन हो गया, उन्होंने कुछ बताया था तो सॉरी, एजाज अहमद साहब और पॉल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ छोटा मोटा इनके लिए कुछ तोहफा लाया है, तो वो काइंडली दोनों यहाँ पे आए तो मेरे हाथ में वो कबूल करें। This is totally out of love and my personal, इसमें कोई ये नहीं है डिपार्टमेंटल या कुछ, दिस बाय जॉइनिंग टू पॉल साहब। थैंक यू। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। इंशाल्लाह किस्मत रही, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक यू शुक्र साहब फॉर योर इनविटेशन। उस्ताद साहब से ये मुख्तसर नसली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शहरी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम वला नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज इस महफिल के रूह रवान मोहतरम अब्दुल हमीद पॉल साहब, हमारे मेहमान खुसूसी जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स महराज साहब, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स K01 शबीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कुपवारा जावेद साहब और दीगर हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आपके सामने एक शायर अर्ज करना चाहता हूँ। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फिजाए दोस्तां को बिछड़ना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिम खुदा हाफिज न कह देना। तकाजा है ये मजलिस का, संभलना लाजमी ठहरा। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि एक अजीम इंसान मोहतरम अब्दुल हमीद पॉल साहब को अलविदा कहें, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए वक़्फ़ की। हमारे मोहतरम अब्दुल हमीद पॉल साहब, जिनका हर दिन अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल ईमानदारी और जज्बे के साथ अंजाम देने में गुजरा, आज रिटायर हो रहे हैं। आपने न सिर्फ गाड़ी के पहियों को चलाया बल्कि जंगलात की हिफाजत के मिशन को भी आगे बढ़ाया। आपकी मेहनत, दयानतदारी और खदमत के जज्बे को हमेशा याद रखा जाएगा। आपकी जिम्मेदारी और वक्त की पाबंदी ने हम सब के लिए एक मिसाल कायम की है। आपने न सिर्फ एक ड्राइवर के तौर पर बल्कि एक टीम मेंबर और साथी के तौर पर भी हमारी मदद की। आपका दोस्ताना रवैया और पेशा वराना अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा।
آپ کی محنت کی وجہ سے جنگلات کی حفاظت کا کام آسان ہوا اور قدرتی ماحول کے تحفظ میں آپ کا کردار ہمیشہ قابل تعریف رہے گا۔ آخر میں اختتام الوداع اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھول کھلتا رہے زندگی کی راہ میں، ہنسی چمکتی رہے آپ کی نگاہ، قدم قدم پر ملے خوشی کی بہار آپ کو، دل دیتا ہے یہی دعا بار بار آپ کو۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز نے بدل جانا ہے، لیکن یادوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہر قدم پر، یہ جدائی صرف جسمانی ہے، دل ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ باقی والسلام ورحمۃ اللہ۔ پال صاحب کے فرزند ارجمند کہ وہ کچھ الفاظ سے ہمیں نوازے، اور بالخصوص اپنے والد صاحب جن کا احترام صد احترام اور جن کی قربانی اور ایثار کی وجہ سے یقیناً وہ ایک ثمر آور زندگی سے اس وقت سرفراز ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان سے کہ وہ یہاں پہ آئے، ہمارے ساتھ کچھ باتیں اور کچھ رموز بیان کریں مختصراً۔ جزاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر، ڈپٹی ڈائریکٹر K01 unit, Deputy Director Baramulla, and all other staff employees who are here present today on my father's superannuation or retirement function. سب سے پہلے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھے آج اپنے پاپا کا سہارا دینا پڑا یہاں تک آنے کے لیے، بس اسی مقصد کے لیے میں یہاں آنا چاہتا تھا کہ اگر میرے باپ نے اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں قریباً 27 ایئرز گزارے ہیں، کیا میرے پاپا بس گھر میں ہی ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آتا تھا کہ ہم خوش ہوتے تھے، یا کہ پاپا کا یہی رویہ اپنی ڈپارٹمنٹ کی تمام امپلائی ہو یا افسران ہو، جہاں تک پاپا کا پیشہ کا تعلق تھا، اس کو آفیسرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تھا۔ آج مجھے وہ بات ثابت ہوئی کہ سچ میں پاپا کا کیریکٹر وہی لگا مجھے جو پاپا کا کیریکٹر اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ تھا، اپنے فیملی کے ساتھ تھا، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ تھا۔ آج تو مجھے اس بات کا سچ میں وہ پروف ملا کہ پاپا کا روی ون اور سیم تھا۔ اس بات میں مجھے کافی یہاں پہ خوشی دی۔ آج مجھے سچ میں لگا کہ میرا جنم 93 میں نہیں ہوا ہے، آج میں اس دنیا میں آ گیا۔ نہیں، یہاں پہ مجھے پاپا کی زیادہ تعریف نہیں کرنے ہیں، اس چیز کا مجھے ثبوت، اس چیز کا مجھے پروف ملا۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ آج اس مقدس، میرے لیے تو یہ آج جیسے ہمارے مسلمانوں کے لیے عید ہوتی ہے، میرے لیے تو آج یہ سچ میں عید ہی ہے، کیونکہ جب مجھے اپنے اس کریئر پہ نظر پڑتا ہے کہ مجھے یہاں اس سٹیج پہ اگر پہنچایا، سچ میں تو مجھے اپنے باپ نے وہی پہنچایا۔ کیوں؟ اس کا ایک مقصد ہے، جب پاپا کا اٹھنا بیٹھنا ان افسروں کے ساتھ تھا، کیونکہ پاپا جب ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یا آپ جیسے خوش قسمت یہاں پہ امپلائی پاپا کے ساتھ تھے، تو پاپا کا ایک ماحول انوائرمنٹ ہی چینج ہو گیا، کیونکہ جب اس نے دیکھا میرے افسروں کا گھر کا انوائرمنٹ کتنا خوشگوار ہے، کیسا ہے، تو پاپا نے بھی وہی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا۔
तो मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मुझे पापा ने सहारा दिया, मेहनत मशक्कत, बस अपनी ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क ने पापा को आज यहाँ पे ऐसे तारीफ करने के काबिल बनाया। जहां तक इस डिपार्टमेंट का ताल्लुक रहा पापा के साथ, तो मुझे इस पापा सब शेयर करता था, कौन कैसा है, किस ऑफिस मेरे कैसा उठना है, कैसा बैठना है। अगर पापा को आज इस तारीफ का यहाँ पे सुनना पड़ा, इसका बैकग्राउंड पापा की एक अपनी बीवी का भी एक अहम रोल रहा। क्योंकि मुझे याद है जब भी जहां अभी डीडी साहिबा ने यहाँ पे कहा कि अगर जी अमीन साहब 8 बजे बराबर फोन करता था तो उससे ना ऊपर जाता था नहीं नीचे। इतना ही नहीं, जहां तक मेरी माँ का ताल्लुक है, वो पापा को कभी ऐसा नहीं कहती थी कि नहीं आप ऐसा करो, आप वैसा करो, निभेगा वहां पे, ये नहीं। वो बराबर अगर पापा को कभी सवेरे जाना होता था तो वो पापा से 1 घंटे पहले उठती थी और पापा के लिए तैयारी करती थी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जो सरबराह है पूरे कश्मीर डिवीजन के, उन्होंने आज मेरे पापा के इस सुपर एनिमेशन डे पे खुद आज तशरीफ लाया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। वेरी थैंकफुल टू ज्वाइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कश्मीर डिवीजन, डीडी साहिबान और बाकी सब लोगों का जिन्होंने आज यहाँ पे ऐसा इंतजाम किया। मैं बस नादिम मुस्तफा के कुछ अशार आपके सामने गुनगुनाऊंगा और उसी के साथ में फिर तशरीफ ले जाऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस्ती लौलाक चूक अली मकाम ऐना ज़नीन गच्छी तरान शम्सो कमर हर सुबह शाम ऐना ज़नीन जो करम द्वन आलमन से निशी शरफ आदमन पैगम बरंतई मुरसलन सुईछुक इमाम ऐनाज़नीन खुदावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में बस ये शेर अपने बाबा के इस मुकद्दस दिन पे मैं यहाँ पे आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने तकदीर में क्या लिखा है, मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने तकदीर में क्या लिखा है। जब मुस्कुराते हैं मेरे पापा मुझे देखकर, जब मुस्कुराते हैं मेरे पापा मुझे देखकर, मुझे लगता है कि तकदीर में कुछ लिखा है। इस बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ आपके लिए, सफर खत्म हुआ लेकिन एजाज साहब, सफर खत्म हुआ लेकिन ये राहें याद रखेंगी, मोहब्बत की कहानी को ये बातें याद रखेंगी इंशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ हमारे ज़ीवकार मेहमान खुसूसी जनाब जॉइंट डायरेक्टर साहब का, वो यहाँ पे हमें अपने नुसूस और जो कि बिल हर वक्त कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाते हैं और दीनी भी और दुनियावी भी नुसूस और उमूर से हमें नवाजते हैं। हम उनका यहाँ पे खैर मकदम करते हैं कुछ लब कुछाई के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد
अफहसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबस्सन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतअल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाई खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, न ढूंढ इस चीज़ को तहज़ीब हाजिर की तजल्ली में, न ढूंढ इस चीज़ को तहज़ीब हाजिर की तजल्ली में कि मैंने इस्तिग़ना में पाया है मेराज मुसलमानी। आज की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस अलविदाई तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल हमीद पाल साहब, काबिल कदर डिप्टी डायरेक्टर K01 शबीर साहब, काबिल कदर डिप्टी डायरेक्टर जावेद साहब, DD कुपवारा नतनूसा, और इनके पास एडिशनल चार्ज भी है 2 का, और इनके साथ जो आए हैं इनके फर्जंद जावेद साहब जो कि पेशी से वकालत का काम करे, और इनके साथ जो मेहमान है एजाज साहब है, मैं एजाज साहब और उनके साथ जो बाकी मेहमान है, और आज की इस तकरीब को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे AD साहिबान और बाकी जो भी स्टाफ यहाँ आया है, तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी है, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि अगर ये तकरीब यहाँ ना होती है और ये जिस शख्सियत के खातिर या अलविदाई तकरीब, अगर मुझे ये इसकी तारीफ़ें मेरे पास नहीं आती, इसका इतना अच्छा सुन के मैं मुतासिर हुआ कि मैं पिछले 4-5 दिन से किसी भी तकरीब में नहीं जाता हूँ। 2 दिन पहले मुझे बड़गाम में भी AD साहिबा ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, आबिद साहब ने कि मैं नहीं गया। कल भी मेरी एक दावत थी जो BK सिंह साहब की थी, मैं नहीं गया बिकॉज के रिसेंटली मेरी एक ट्रेजिडी हुई थी, तो मैं मुनासिब नहीं समझा था क्या जाना। लेकिन चनाच ये ऑनेस्टली स्पीकिंग की जो एक अफसर के साथ जो भी काम करते हैं, ये एक फैमिली होती है। यहाँ कोई बड़े ओहदे का हो या छोटे ओहदे का हो, सब एक अपना अपना रोल का ये टीम वर्क होता है, और जो इनमें जो भी एम्प्लॉय सबसे क्लोज होता है एक अफसर के साथ, वो एक ड्राइवर होता है। और ड्राइवर इतना क्लोज होता है कि कुछ जो इस अफसर के राज होते हैं या कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं वो इसको पता हो, लेकिन उस ड्राइवर के घर वालों को पता नहीं, उसके माँ बाप को पता नहीं, और उसके साथ ये शेयर किया जाता है, इतना तवक्का इसके साथ हो जाती है। और यही वो बंदा है जो बिला झिझक एक अफसर के घर में जाता है। अगर कभी कभार एक अफसर को अपनी बेटी को कहीं छोड़ना होता तो वो मुलाजिम से ज़्यादा ड्राइवर पे ही भरोसा करता है। मैं खुद गुजरा हूँ, मुझे खुद पता है कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद किसी मशगूल होता तो, लेकिन ड्राइवर को कहता आप मेरा ये काम कीजिए। इसलिए मैं इनको सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ कि 27 साल महकमा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में उन्होंने बहैसियत ड्राइवर का काम फर्शनासी के साथ अंजाम दिया, इज्जत के साथ काम किया, और एक अपने अफसर की इज्जत अफजाई की है। तो यही वजह है कि आज इतने लोग इनके एजाज में यहाँ जमा हुए हैं, ये सबका प्यार होता है। मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा कि बड़े अफसर भी रिटायर हो गए हैं कि उनको इस हिसाब से इज्जत अफजाई के साथ रुखसत नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे शबीर साहब ने बताया कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा वो काटोगे। लेकिन ये एक इंसान का खुलूस होता है, एक इंसान की अच्छाइयाँ होती है, एक इंसान का किरदार अच्छा होता है, चाल चलन अच्छा होता है कि उसकी अलविदाई तकरीर में उसकी सबकदोशी पर उसको एक एजाज के साथ अलविदा किया जाता है। मैं सबसे पहले इस चीज़ के लिए उनको खुशकिस्मत करार देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे SR-43 केसेस आते हैं, तो बड़ा दुख होता है जब मैं किसी की 17 साल बच्चा या 18 साल बच्ची को देखता हूँ कि उसका नाम आ जाता है उसके बाप के बदले, तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये किसी चीज़ का कहते हैं इन्नमल अमालु बिल-ख़वातीम, किसी भी चीज़ का अच्छा जब एंड हो जाए तो उसे कहते हैं कि ये पाए तकमील पहुँचा। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की दस्ती कुदरत में है जो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। मौत देना, इज्जत देना, जिंदा देना अल्लाह के हाथ में। लेकिन इस हिसाब से ये बहुत खुशकिस्मत है कि उन्होंने बहुत सारे अफसरों के साथ काम किया, और जिसके साथ उन्होंने काम किया अल्लाह को हाजिर ना, इनको मैं रास्ते में भी ये जावेद साहब कहते हैं, अमूमन जब भी ड्राइवर का नाम होता है, जब भी हम कहीं तैनात हो जाते हैं, हम सबसे पहले बच्चे ड्राइवर कौन है, कैसा, अगर इनपुट्स अच्छे आते तो हम भी कुछ, लेकिन इतना ड्राइवर के साथ एक अफसर का इतना दिली लगा होता है, इतने अपने पर्सनल ताल्लुकात होते हैं। इस हिसाब से ये खुशकिस्मत इंसान है, क्योंकि कहते हैं वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड।
इसी तरह जो भी कोई इंसान का अच्छा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये भी कहा गया कि अगर दुनिया से कोई शख्स रुखसत हो जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा था या बुरा। तो उसने कहा उनकी तजहीज़ तकफीन या जब उसको दफनाया जाता उस वक्त जो वहाँ पे मौजूद होंगे, जो वो कहेंगे वही उसका उसी हिसाब से अंदाजा लगना कि वो वेदर ही वाज ए गुड और बैड। तो मैं इनको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोटेक्शन फोर्स में 27 साल काम किया है, इज्जत के साथ काम किया, ज्ञानदारी के साथ काम किया है और अपना नाम भी कमाया है और उसी वजह से आज उनको ये इज्जत अफजाई मिल रही है। दूसरा ये कि इनके फर्जंद साहब ये भी कह रहे थे, मैंने इनको याद रखना, ये माँ बाप ही होते हैं जो एक अगर मैं भी किसी जगह पर उसके पीछे अल्लाह ताला का फजल, मेरी मेहनत, लेकिन माँ बाप का भी हाथ होता है, जिन्होंने कभी कभार अपनी औलाद की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए कभी कभार माँ बाप सच और झूठ का भी साथ लेते हैं, लेकिन एक अंदर से उनके बच्चे के साथ वाबस्तगी होती है कि माँ बाप अपनी मतलब कुछ बच्चों की बहबूदी के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अब इनको ख्याल चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे इज्जत वही अच्छी है जो आप किसी शख्स को देखें जिसे आपकी कोई तवक्का न होगी। अब इनके वालिद साहब रिटायर हो गए, अब इनको पता चलेगा कि हाउ सिंसियरली ही विल बी टू हिज फादर, ये कितना याद रखेगा कि इसके बाप ने इसके लिए इसको पढ़ाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। बहुत बार उन्होंने फटा जूता पहना होगा लेकिन बेटे को अच्छा दिया होगा। मैं मतलब कभी कभार बहुत बार माँ बाप अपनी मतलब बच्चे की बहाली के लिए अपनी दिन रात कुर्बान करते हैं, लेकिन क्योंकि कुरान करीम में जहाँ भी अल्लाह ताला की इबादत का होगा वहाँ भी बिल वालिदैन ihsana, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsana। ये माँ बाप अल्लाह ताला के बगैर अगर किसी को का ज़्यादा तरक्की नहीं, वो माँ बाप के साथ उसने सुलूक आया है। तो लेकिन वो खुशकिस्मत वो बाप भी है जिसको सारे औलाद मिले, और वो बाप बेटा भी खुशकिस्मत है जिसको ये मौका मिले कि वो अपने बाप की फरमा बरदारी करे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जो अब बाकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ खुशहाली से गुजरे, अल्लाह ताला इनकी आखिरत को सवारे, इनको ईमान कामिल पे उनका फायदा हो जाए और उनके औलाद का औलाद साले बताए। और इनसे यही दुआ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कि रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखें। कहीं हमारे मसहब में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी गार में बैठिए, तन्हाई में बैठिए। सबसे अच्छी वही है कि आप दुनिया के साथ उलझ कर अल्लाह ताला को याद रखें। तो यही इंसान कोशिश करें कि रिटायरमेंट के पहले अपने आप को किसी अच्छे काम में मसरूफ रखें, और अपना जो रिश्तेदार है या जो बाकी रिश्तेदार है जिनके साथ उनको आज तक मौका नहीं मिला, उनको टाइम दे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि दौरान ड्यूटी अगर इनके साथ कोई कोताही हुई है, किसी आदमी के साथ कोई जाती हुई है, इनसे कोई गलती जाने या अनजाने में, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला इनकी जो बाकी ज़िंदगी है खुशहाल रखे, उनके आला को सलामत रखे, और उनके बेटे को अल्लाह ताला इनके लिए आखिरत में जन्नत का बाइस बनाए। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब कोई इंसान मरता है तो कभी कभार उनकी अगर वो गुनाहगार भी होता है तो उसके अजाब में तखफीफ हो जाती है, उनको कोई मर्तबा बढ़ा दिया जाता है। तो वो अल्लाह ताला से इरशाद, अल्लाह ताला से गुजारिश करता है कि बारी ताला ये यहाँ से मैं यहाँ कहाँ से बताऊँ, आपके एक साल औलाद की वजह से जो आपके पीछे आपको मगफिरत की दुआ करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही इरशाद पाक है जब कोई इंसान मरता है तो इसके अमाल का खात्मा हो जाता है, उनका चैप्टर मुनक़ता हो जाता है, सिवाय उसमें तीन चीज़ में एक है सदका जारिया, दूसरा होता है छोड़ा हुआ इल्म जिससे लोग फायदा उठे, तीसरा होता है नेक औलाद। तो लेकिन मैं उनसे यही दुआ करूंगा कि इल्तिजा करूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करे, और इनको भी यही गुजारूंगा कि इस नौकरी में, जैसे इनके बेटी ने कहा कि उनकी वालिदा की भी बहुत हाथ है, इनसे भी यही गुजारिश है कि अब रिटायरमेंट के बाद एक अजीम शौहर की तरह अपनी बीवी का भी साथ दे, जिस वक्त उसने उनको साथ दिया था। अल्लाह ताला इनके हलायाल को खुशहाल रखे, खुशहाल रखे, और अल्लाह ताला इनको हज मबरूर अपनी ज़ौजा के साथ हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे। क्योंकि वो बहुत, क्योंकि पता नहीं का इंसान हिस्सा है के साथ, क्योंकि ये लाइफ पे कोई भरोसा नहीं है, लाइफ का कोई ये कहीं नहीं लिखा होता है कि इंसान का मर जाएगा, ये किसी के बस में नहीं। अल्लाह ताला आप सबको खुशहाल रखे। और मैं दुआ की टीम का भी, आपके एरियज का भी मशकूर हूँ जिन्होंने दावत दी और जिन्होंने इस तकरीब में किया। और याद रखिए कि ये सिलसिला रहना, चाहे कोई आदमी छोटा हो, मुलाजिम बड़ा हो, सबके साथ एक साथ सुलूक करना चाहिए। और इससे एक इंसान को लगता है कि मैं किसी जगह काम कर रहा था, मेरा किसी महकमे के साथ वाबस्तगी थी। और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज अलविदाई तकरीब में किसी भी तरीके से मदद की है, और इनको भी दोबारा मुबारकबाद देता हूँ कि वो इज्जत के साथ आज सब वक्तों से बात करें। सबसे दरख्वास्त है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इस बात की खुशी है आज कि
रिटायरमेंट तो होना ही होना, हर एक की अपनी बारी होती है। मुझे लगता है मुझे आज जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर जो है हमारा इस वक्त महराज साहब सामने है मेरे, तो मुझे आज शायद मुझे लगता है मुझे आज इसके हेड ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए जाना है, ऐसी खुशी मुझे लगती है। तो मैं अब थोड़ा सा शेखुल कलामी शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के थोड़ा बयान करना चाहता हूँ 1-2 मिनट में बस। नफसी कुरुस अटी अटी नफसी कुरुस पशेमान नफसी मदहोस हाकल चटी नफस यम रोट सी वोत लामकान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना हूँ कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब बैठे हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हैं, एडी साहब बैठे हैं और तमाम जो फील्ड स्टाफ हमारा है, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं जॉइंट डायरेक्टर जो महराज साहब हमारा जो कश्मीर रीजन का जॉइंट डायरेक्टर है, तो जनाब मैं इसने अपनी मसरूफियात मतलब इसको मतलब मुझे पता है क्या मामला हुआ है, तो इसकी मसरूफियात की वजह से उसने इसमें मेरी इस रिटायरमेंट के फंक्शन में टाइम निकाला, तो मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं जावेद साहब जिसके साथ मैंने 4.5 साल दिए हैं उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और प्रेजेंटली 2-3 महीने से मैं शबीर साहब के साथ रहा, इसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद डिप्टी एडी साहिबान, इसमें शुक्र साहब है, हैदर साहब है, मेरा वो कोलीग एक शकीर रहमान साहब, मुश्ताक साहब और ये DI साहिबान, इसमें है वाचर साहब, मतलब स्टाफ जो है, लेडीज स्टाफ जो है, बाकी कोलीग्स है। मैं इनका अपने तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इस रिटायरमेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अगर मुझसे कोई कोता हो गई आज तक तो इसको दरगुजर करना है, तो बाकी वसलाम। वारिस साहब कुरान पाक वारिस साहब should translate it tonight. Ya but it's shawls. No. Momento. Musamil Qadir. Momento. Begitu bro, sedikit sama. अच्छा यूज करना पड़ता
ठीक बच्चों, अच्छा ठीक। ये नूर साहब ठीक बच्चों, बाप बच्चों ठीक। ये मुस्वर साहब है ठीक बच्चों, दे ठीक है जिस तरह ठीक बच्चों, बच्चों ठीक। शुक्र तो ठीक। शुक्र शुक्र। ये गवर साहब ठीक बच्चों, सॉरी का साथ। ये कला। आशिक साहब ठीक बच्चस ऑन टाइम छा वातना सॉरी क्या बेहतरीन बहुत बढ़िया शुक्रिया 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 चलो शुक्रिया
ابراہیم صٲب لالم اصل چیز پلو بچان